Good evening, everyone. So in this class, we are going to discuss regarding some of the questions which are related to specifically your UGC NET home size JRF examination, right? So the upcoming examination, we are going to discuss some of the questions in this mock test series. So the first questions in today's session is, as you can see that a menu that offers each food item separately at an individual price is called table d'hote, a la carte, cyclic menu or static menu. So which one is the right answer according to your question? So as you all know that there are some types of menu, right? In food service management, specifically this topic we have discussed. So in on that individual topic, we have also seen that how exactly each type of menu we can like offering what kind of service, right? So in these questions, we can see the statement is that separately priced. So a single menu, but the items are separately priced. Means, for example, tandoori roti. It could like we can say that for one tandoori roti, 20 rupees. Then aloo paneer. So for that, we can offer like probably uh, 100 rupees for a restaurant or your business purpose. We could definitely where we can have a menu. So सेपरेटली प्राइस्ड इसमें से कौन सा होता है तो वो आपको बताना है ठीक है तो डेफिनेटली let's see the answer then I am discussing again so the answer is nothing but the a la carte menu so yes whenever आपको एक मेनू मिलेगा जिसमें जो भी फूड ऑप्शन बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग एक सेपरेट प्राइस 20 रुपीज हो गया फॉर एग्जाम्पल रोटी के लिए राइस के लिए 100 रुपीज हो गया एक प्लेट राइस के लिए फॉर एग्जाम्पल सो सेपरेटली प्राइस्ड है इस पे नहीं बोला गया है कि एक ही थाली में दाल रोटी राइस सब कुछ मिलेगा एंड इसके लिए 100 रुपीज ऑफर हो रहा है अगर ऐसा होता तो उसको बोला जाता टेबल डी होटे तो वो टेबल डी होते होता लेकिन जब आला काटे बोला गया है तो आला काटे इज नथिंग बट द मेनू विच हैव द आइटम्स सेपरेटली प्राइस्ड देन साइक्लिक मेनू भी एक होता है एंड स्टैटिक मेनू भी होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pre-planned menu which menu with limited choices इसमें choices limited होगा and a fixed price उसको क्या बोला जाता है fixed price होगा and limited options होगा okay so is it a semi a la carte is it a table d'hote is it a dijon menu is it a carte dijon menu so which one probably you think that would be the right option so yes the answer for this is the table d'hote menu तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जिसमें बोला जाती मैंने बोला है ऑलरेडी राइट कि देयर आर सम ऑफ द ऑप्शंस राइट भात हो गया राइस हो गया दाल हो गया रोटी हो गया चटनी हो गया पापड़ हो गया तो इस सभी चीज विच आर लिमिटेड इन ऑप्शन मतलब यू कैन नॉट लाइक ऐड एनीथिंग मोर व्हाटसोएवर the basically food service joint or a food service system providing you that would be the option for you only that is going to be the specific option for you only जिस थाली में जो जो परोसा जाएगा वो भी ऑप्शन है ऐसे अलग से अगर लेना चाहो तो आला कार्ट से आप ले सकते हो लेकिन टेबल डी होटल मतलब टेबल एक प्लेट में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो भी ऐड कर दीजिए एक ही प्राइस में 100 का थाली है अगर आप बोल रहे हो कि थोड़ा पनीर का सब्जी जो उसमें है ही नहीं तो अगर आप बोलो कि थोड़ा पनीर का सब्जी आप इसमें इस सेम थाली में ऐड कर दो तो नो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑप्शंस आर वेरी मच लिमिटेड जो बोला गया है वही ऑप्शंस है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेटली द आंसर इज योर टेबल डी होटे तो टेबल डी होटे एंड डिजोर मेनू ये दोनों जो ऑप्शंस है ये दोनों जो टाइप्स ऑफ मेनू है ये ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है एक से ज्यादा बार ठीक है तो इसीलिए आप ये डेफिनेटली कंसिडर करोगे a menu that changes daily according to availability of ingredients. Is it a detour menu? Is it a static menu? Is it a cyclic menu or specialty menu? ये इसमें से कौन सा होगा आपको देख के बताना है ठीक है तो एक बार देख लीजिए एंड देन आंसर मी विच वन इज द ऑप्शन सो यस अगर आप अच्छे से देखो इसमें क्या बोला गया है कि द मेनू जिसमें आप क्या कर सकते हो चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेली बेसिस सो आंसर इज द डिजोर्ड मेनू ओके तो एक थाली में जो भी आप दे रहे हो ना
Sorry. That is a table di hote menu. So the Dijon menu is a separate menu. For example, फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट पे गए हो एंड आपने पूछा कि अलग से आज आप स्पेसिफिक कुछ मतलब आज क्या कुछ है। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस पे आप जा रहे हो, दिसंबर में आ रहा है, तो आप क्रिसमस पे अगर जा रहे हो तो कोई एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट उसी टाइम पे केक बना रहा है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल टाइप का केक। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि मतलब ये यूजुअली नहीं होता, लेकिन क्रिसमस में क्या हो रहा है, एक केक बन रहा है जो वो लोग ऑफर कर रहा है फॉर 7 डेज। इसको बोला जाएगा फॉर 7 डेज स्पेसिफिकली। एक ही टाइप का केक नहीं, डेली डिफरेंट टाइप का केक भी हो सकता है। तो आज का जो मेनू है स्पेसिफिक टुडेज मेनू, सो टुडेज मेनू इज द डिजोर मेनू। लिखा स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि टुडे स्पेसिफिक मेनू इज और न्यू मेनू इज दिस टाइप ऑफ। ओके, सो उसमें क्या होगा, आप अगर अ, वो जानोगे या देखोगे तो मतलब आपको समझ लेना होगा कि वो जो चीज है ना, वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टर्म्स पे बोला गया है कि डिजोर मेनू इज नथिंग बट दैट इंडिविजुअल मेनू जो उस दिन के लिए ही स्पेसिफिक है। तो ये आप याद रख लेना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिजोर मेनू इज द आंसर। ये भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, a menu that repeat after a specific interval, example 7 days और 4 days। तो ये तो समझ आप लोग समझ ही जाओगे, स्टैटिक मेनू में तो मेनू स्टैटिक रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। साइक्लिक मेनू में ऐसा होगा, इसलिए आंसर साइक्लिक मेनू होगा। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट दैट बेसिकली आपका बोला जा रहा है कि रेस्टोरेंट दैट यूज द सेम मेनू बेसिकली थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर, एक टोटल ईयर में सेम ही मेनू आप फॉलो कर रहे हो, तो क्या वो स्टैटिक मेनू होगा, क्या वो साइक्लिक होगा, मार्केट मेनू होगा, डिजोर होगा, ये अच्छे से समझ लीजिए। थ्रू आउट द ईयर बोला जा है क्या है। हम्म, तो यस, थ्रू आउट द ईयर सेम मेनू, सेम मतलब सेम चीज, स्टैटिक चीज, स्टैटिक। आपको क्या लग रहा है, ठीक से अगर समझ पाओ आप क्वेश्चन, आंसर इसमें ही छुपा होता है, तो स्टैटिक ही होगा आंसर, स्टैटिक में। नेक्स्ट, a menu where all meals, breakfast, lunch, dinner are available all day is called California menu, semi a la carte menu, static menu और carte dijon menu। all menu where all meals, एक मील में मतलब डेफिनेटली ब्रेकफास्ट के लिए अलग मील होता है, एंड आपका जो अदरवाइज ऑप्शन भी होगा उसके लिए भी अलग ऑप्शन होता है। तो उसी बेसिस पे बोला गया है कि अगर कुछ अलग भी है तो क्या वो आप क्या कैसे देखोगे। हाँ, ऑल मेनू वेयर ऑल मील्स, ठीक है, आर अवेलेबल ऑल डे। मतलब ब्रेकफास्ट में शायद आप मान लो पूरी एंड आलू का सब्जी बना था, लेकिन अगर आप रात डिनर में जाके बोलोगे ना कि पूरी एंड आलू का सब्जी चाहिए जो 10 बजे बना था, तो शायद कोई भी ऐसा मतलब सच सब जगह पे ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सपेक्ट कर लो कि हाँ सेम ही मेनू आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी होता है, दिस टाइप ऑफ मेनू इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें सभी चीजें एक ही टाइम में अवेलेबल हो ऑल डे। तो वो नॉन अदर देन योर कैलिफोर्निया मेनू, ठीक है। ये न्यू है, थोड़ा एक न्यू क्वेश्चन, डेफिनेटली दिस वन इज न्यू, लेकिन आप जरूर याद रख लेना, ये भी आ सकता है फॉर डब्ल्यू बी सेट ऑल्सो। quite important in California. See, right now in today's pattern, NTA basically try to add a different kind of questions. So इसी बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड ऑन किया है। तो आई थिंक डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कुछ क्रिटिकल तो है भी नहीं, तो याद रख लेना, नोट डाउन कर लोगे तो भी आपको याद आ जाएगा। मेनू दैट लिस्ट फूड ग्रुप्स एंड प्राइस एज कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बो मील्स। तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन मेनू, आला काटे, टेबल होटे, मार्केट मेनू। ओके, तो उसमें तो डायरेक्टली आंसर कॉम्बिनेशन मेनू ही हो जाएगा, ये भी समझ आ रहा है देख के ही, राइट। A menu that planned for institutions like hospital, hostels और school, तो कौन सा वाला होगा, अलाकाटे, स्टैटिक, साइक्लिक और मार्केट मेनू। तो वो सभी चीजें ऑलरेडी सेम ही है, साइक्लिक मेनू होगा, क्यों होगा, साइक्लिक मेनू में क्या होता है, इंटरवल के like 4 days, after 4 days, after 2 days, after 3 days. So after some intervals, this menu is going to be provided. दाल चावल रोटी एक मतलब एक ही दिन में तो नहीं होगा ना, शायद चावल एंड योर दाल एंड योर वन सब्जी, ठीक है, एक ही दिन में स्पेसिफिक पनीर का सब्जी मंडे हो गया,
ट्यूसडे छोड़ के फिर से वेडनेसडे हो गया, तो ऐसे एक दिन छोड़ छोड़ के शायद, और 2 दिन छोड़ छोड़ के शायद एक ही मेनू सेम ही पैटर्न में एक हॉस्टल्स पे अगर आप देखो तो चलता रहता है, हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही होता है। तो जब भी इंस्टीट्यूशन बोला जाए तो साइक्लिक मेनू इज आंसर। A menu based on seasonal availability. इसमें कौन सा वाला? सीजनल अवेलेबिलिटी के ऊपर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स लाइक अभी विंटर है तो इसमें कॉलीफ्लावर इज वेरी कॉमन, राइट? कॉलीफ्लावर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फूल गोभी जो बोला जाता है, ठीक है ना, वो तो वो आपको कॉमनली आप लोगों को मिलेगा मेनू में। तो ये सीजन के लिए ही है। अगर आप और कोई टाइम पे ये खरीदने जाओ तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है क्योंकि वो सीजनल नहीं है। तो ये इसी के लिए जो मेनू आपको मेनू होता है ना, वो होता है मार्केट में, कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट जो भी अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप मेनू बनाओ। Next, a menu with both a la carte and table d'hote features is a semi a la carte कार्टेड डी जोर और कैलिफोर्निया मेनू और कॉम्बिनेशन मेनू। तो एक मेनू जिसमें आ ला कार्टे मीन सेपरेटली प्राइस्ड मील भी है, एंड टेबल डी होटे मीन्स आपका जो टोटल मतलब एक प्लेटर हो गया, एंड प्लेटर में जो जो है वो सभी चीज आपको मिल रहा है, तो वो जो आएगा ना वो हो जाएगा आपका एक ही साथ दोनों चीज अगर होगा तो वो किस में आएगा? तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन आपका सेमी आला काटे बोल के, मतलब ना वो आला काटे रहा ना वो टेबल होटे रहा, तो इसीलिए सेमी आला काटे बोला जाता है। Assertion reason type of question. So cyclic menus that helps in controlling food cost. Assertion में बोला गया है। रीजन में आप देखो, रीजन में बोला गया है कि दे अलाउ फोरकास्टिंग एंड बल्क परचेसिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो साइक्लिक मेनू मतलब ये जो assertion रीजन वाला क्वेश्चन होगा ना, सो इन केस ऑफ एनी assertion रीजन क्वेश्चन यू हैव टू ऐड बिकॉज। सो दिस इज द ट्रिक। मतलब आप read out like this. Cyclic menus help in controlling food cost because they allow forecasting and bulk purchasing of ingredients. मतलब इसी चीज के लिए रीजन यही है। क्या यही है? तो क्या बोथ ए एंड आर ट्रू? तो ये ऐसे आपको मतलब क्वेश्चन को समझना होगा। तो साइक्लिक मेनू अगर होगा तो कंट्रोल शायद होना चाहिए फूड कॉस्ट, क्योंकि सेम ही मेनू इंटरवल में दिया जाता है। क्यों कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि दे अलाउ फोरकास्टिंग एंड बल्क परचेसिंग। ट्रू। साइक्लिक मेनू आपका ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है कि हॉस्टल में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन में साइक्लिक मेनू यूजुअली यूटिलाइज होता है। क्यों होता है? सॉरी होता है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू bulk purchasing is very common, right? Organization, क्योंकि एक दो लोग तो होते नहीं है। A number of people are huge number of people are there. Okay, numerous number of people are there. So definitely we have to purchase in bulk. So that definitely the reason is also right. So definitely अगर because of add करो तो reason भी सही ही आ रहा है। तो answer is A. Okay. Next, a la carte menu offers quick service because they include dishes that are prepared in bulk. Is it so? अलाकाटे मेनू क्विक सर्विस क्यों दे पाता है? मतलब अलाकाटे मेनू में क्विक सर्विसिंग क्यों होता है? क्योंकि दे इंक्लूड प्री प्रिपेयर्ड इन बल्क। क्योंकि वो अलग से ऑलरेडी बल्क में डिशेस मतलब पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। कि अगर मेनू में बोला गया है फिश फ्राई, तो फिश को अच्छे से मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा जाएगा। तो यस, इसमें एक्सप्लेनेशन की बात नहीं पूछा गया है, क्या स्टेटमेंट बहुत सही है या नहीं है वो ही पूछा गया है। तो आंसर इज ए ट्रू बट आर फॉल्स। क्यों आर फॉल्स है? अगर ये बोला जाता है रेडी टू ईट मेन्यू, रेडी टू ईट मतलब आप ले लो फुचका ले लो, और मतलब आपका जो फुचका हो गया, आपका केएफसी का जो ऑप्शन होता है ना, केएफसी डायरेक्टली वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में मैरिनेटेड फॉर्म में भेजता है कार, मतलब बाई कार ऑन द रीजनल जो भी आपका फूड आउटलेट हो गया। तो उसमें क्या करता है, आप लोग अगर केएफसी में कभी भी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ्राइंग ऑयल में वो लोग डिप करके फ्राई करके दे देते हैं। तो क्या टाइम लगता है इसमें? नहीं लगता है, क्योंकि वो अलग से बनाना ही नहीं पड़ता। ऑलरेडी बोला गया है जैसे वैसे ही बनाकर वो आप लोगों के थाली में परोस देंगे। ठीक है, तो वो हो गया रेडीमेड मेनू। तो रेडीमेड जो रेडी टू ईट फूड होता है, तो वो आला कार्टे में नहीं आएगा, वो एक अलग सा टाइप ऑफ पैटर्न है। स्ट्रीट फूड में ये कॉमनली मिलता है आप लोगों को। And KFC and some of the other sources like sorry options are also associated with it. But अगर बोला हो गया होगा à la carte, for example, there are
हंड्रेड्स और 200 ऑफ मेनू। इज इट पॉसिबल कि सभी चीजें पहले से ही करके रखा जाए? नो। शायद वो लोग अगर जानते होंगे कि फिश फ्राई एंड चिकन का कोई ऑप्शंस इज वेरी पॉपुलर फॉर दैट इंडिविजुअल फूड सर्विस organization, then they probably already वो बना के रखे हों, मतलब they already know regarding that individual dish. तो इन दैट केस दैट इज पॉसिबल, बट अगर ऐसा हुआ कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 100 में 100 ही ऑप्शंस ईच डे दिखता होगा, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, इन वेस्ट बंगाल, अगर आप सरसों दा साग एंड मक्की दी रोटी जो होता है ना पंजाब का डिश, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हर हर दिन को बनेगा एज अ स्टेपल फूड, तो आप गलती कर रहे हो। इधर दाल चावल मिल जाता है, माछ भात मिल जाता है इजीली, लेकिन वो इंडिविजुअल सरसों दा साग मक्की दी रोटी वट एवर द ऑप्शन विच आर वेरी कॉमन इन पंजाब इज नॉट वेरी मच अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल। सो अगर कोई फूड जॉइंट का ऑप्शंस में वो इंडिविजुअल डिश है, तो आपको पूछना पड़ेगा वो लोगों को, लाइक टू देम, लाइक to the organizer, that to the manager, that is it available today, that we are willing to order this individual Punjabi dish. तो अगर वो लोग बोलेंगे कि हाँ सर अवेलेबल है और सर हाँ, देन ओनली यू कैन ऑर्डर दैट, नहीं तो आप नहीं ऑर्डर करोगे। इज इट क्लियर? I think this is clear. Okay, next. Which of the following microorganism is most heat resistant and therefore important in canning? Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, E. coli. सो आंसर इज क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्या बोला गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट हीट रेजिस्टेंट, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से ज्यादा हीट रेजिस्ट कर पाता है कैनिंग के लिए। तो कैनिंग जब भी बोला जाता है ना, तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम इज अ वेरी कॉमन लाइक एसोसिएशन, लाइक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन एज आंसर। तो इसीलिए जस्ट कॉमन है, इसीलिए आप याद मत रखो। ये एसोसिएटेड सही में है, क्यों है वो आपने ऑलरेडी जान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, सॉरी, तो अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर इज सी, एंड आपको यही बेसिस पे याद रखना होगा, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर आप जब भी आपको मिलेगा ये इंडिविजुअल मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, कुछ द पीपल हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन द कोर्स, डेफिनेटली एक क्रैश कोर्स अभी चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, क्रैश कोर्स, ठीक है। बहुत ही कम, बहुत ही मतलब दिस अ वेरी लेस प्राइस फॉर दिस कोर्स विच इज 899। इतना कम में टोटल कोर्स मिल रहा है। तो अगर आप लोग अभी भी विलिंग हो लेने के लिए, तो 7494988201, so this is the number, okay, through which you can enroll to this course. So if you are willing enough, then try to reach us on this number. Try to talk with our coordinator and be enrolled in this course, because अगर आप दिसंबर का जो इंडिविजुअल एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का वो आप टारगेट कर रहे हो, तो तब तो आपको जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि हम रेगुलराइज वे में मॉक टेस्ट ला रहे हैं, ठीक है, कोर्सेज में, एंड लाइव क्लासेस भी ऑलरेडी चल रहा है, एंड आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो अगर आप विलिंग हो तो डेफिनेटली ये जो नंबर बोला गया है ना 7449488201, is it, if it is not legible, if it is not readable properly, then you can also ask in the comment section. We will definitely going to provide the answer there also, right? So whosoever are willing for this course enrollment, do reach us through DM or call in this number. Okay. So next, which type of fatty acid is most associated with raising LDL? So this is a very common question कि low density lipoprotein जो होता है उसको increase करने में कौन सा वाला like स्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल is associated। तो आप definitely जानोगे ओमेगा 3 polyunsaturated are more like a good type of cholesterol, right? तो वो तो नहीं होगा। एंड ओमेगा 3 लाइक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड। जब भी अनसैचुरेटेड बोला जाए तो वो सही ही होता है हम लोगों के लिए। तो जब भी सैचुरेटेड मतलब यू कैन सी लाइक एनिमल प्रोटीन एंड लॉर्ड्स टाइप ऑफ लाइक अगर आप कोई भी एनिमल प्रोटीन ले रहे हो, बीफ हो गया, चिकन हो, चिकन इज अ काइंड ऑफ अ लीन मीट, नॉट चिकन, आपका मटन हो गया, तो सैचुरेटेड फैट जितना ज्यादा होगा
chances of it like your CBD type of there are type various diseases which are associated with this individual spectrum of disease. तो हार्ट रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज होगा तो इसमें डेफिनेटली इसका हाथ हो रहा है। तो एलडीएल बढ़ाने के मतलब एलडीएल इंक्रीज होने के साथ ये चीज एसोसिएटेड है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड। सॉरी, आप क्वेश्चन को देखिए फिर पहले। तो rancidity in oil is due to oxidation is mainly prevented by adding emulsion। rancidity oil में क्यों होगा? क्यों होगा? क्या हम एंड अगर होगा तो कैसे हम प्रिवेंट कर पाएंगे उसको? इमल्सिफाई ऐड करके, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, हीटिंग द ऑयल बाय और स्टोरिंग द ऑयल इन द क्लियर ग्लास बॉटल। सो यस, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ओके, सो एक्सप्लेनेशन में जब जब भी आपको ये नोट्स मिलेगा आप देख लेना। बोला गया है लाइक BHT, BHA, विटामिन ए, तो ये दोनों का ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। आप डेफिनेटली नाम लिख लो अपने नोटबुक पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो विटामिन ई इज अ वेरी लाइक नेचुरल लाइक ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो तीन जो नाम आप देख रहे हो, ये ऑल these all are antioxidant, so this can definitely able to prevent the oxidation process in case of oil। so yeah, याद रख लेना। Hydrogenation of oil converts saturated fats into unsaturated fats, liquid oil into solid semi-solid fats, oil into emulsifier और triglycerides into sterol। तो अगर हाइड्रोजनेशन बोला गया है तो वो क्या मतलब इसमें अगर ऑयल का आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तो क्या चेंजेस आएगा इसमें से? तो आंसर आप देख ही पा रहे हो। तो लिक्विड ऑयल इनटू सॉलिड सेमी सॉलिड, इसका एग्जांपल्स क्या है? तो अब वनस्पति आपने देखा होगा। तो वनस्पति इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ लिक्विड ऑयल कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड फैट। सॉलिड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, which oil is considered the richest natural source of omega 3? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सा वाला रिचेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का? इज इट कोकोनट ऑयल, इज इट सॉरी ग्राउंड नट ऑयल, इज इट फ्लेक्सीड ऑयल और इज इट मस्टर्ड ऑयल? तो यस, द आंसर इज योर फ्लेक्सीड ऑयल। नेक्स्ट, ये नाम भी आप डेफिनेटली याद रख लेना। ओके, winterization of oil is carried out winterization of oil is carried out to। क्यों winterization जो प्रोसेस है ऑयल का, वो क्यों किया जाता है? ठीक है, क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फैट, रिमूव द गम्स और वॉक्सेस और इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द ऑयल और आपका सैचुरेटेड फैट रिमूव करने के लिए। तो यस, इट हेल्प्स टू रिमूव द गम एंड वॉक्सेस। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन फेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप इसमें आंसर जो लिखा है उसको पढ़िए एंड इसको याद भी रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, loss of vitamin C during cooking of vegetable is mainly due to heat and oxidation, minerals, high pH, freezing। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो किस वजह से मतलब which one is the primary reason from these options as for which uh, vitamin C is going to basically a loss of vitamin C is going to basically happen। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो आंसर इज योर हीट एंड ऑक्सीडेशन। हीट एंड ऑक्सीडेशन इज द potent cause of vitamin C like loss in any food items। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा देर तक हमको बॉयल नहीं करना चाहिए वेजिटेबल्स को, ठीक है ना? नो। सो नेक्स्ट, क्लोरोफिल इन ग्रीन वेजिटेबल्स टर्न्स ऑलिव ग्रीन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। Chlorophyll in green vegetables turns into olive green when cooked for long time due to transformation of phyophytin, carotene, flavones, xanthophylls। So your answer is the phyophytin। तो phyophytin के लिए ही कलर की क्या बोला गया है? क्लोरोफिल इन ग्रीन वेजिटेबल्स टर्न इनटू ऑलिव ग्रीन। तो phyophytin है इसीलिए कलर ग्रीन से ऑलिव ग्रीन हो जाता है, ठीक है?
To retain nutrients in vegetables, the recommended method is कैसे हम न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकते हैं. Is it cooking in excess water or cutting vegetables long before cooking, steaming or reheating repeatedly? तो अगर आप एक्सेस ऑयल में मतलब बॉईल करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लीच आउट होगा विटामिन, राइट. तो ये तो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, कुकिंग वेजिटेबल्स लॉन्ग बिफोर. क्या ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब जब आप कुक करोगे उससे बहुत पहले आप काट के रख दो वेजिटेबल्स को, तो आप मतलब क्या ये सही होगा? क्या लगता है आपको? तो नो. स्टीमिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ कुकिंग. उसमें क्या होता है, सस्टेन होता है न्यूट्रिएंट्स. एंड अगर आप रिपीटेडली रीहीट करोगे तो भी उसमें लॉस होगा न्यूट्रिएंट्स. तो आंसर तो आप समझ ही पाए होंगे, सी ही होना चाहिए. तो यस, सी इज द आंसर. लॉस ऑफ मिनरल्स ड्यूरिंग कुकिंग. इसमें मिनरल बोला गया है, तो which one is the option? The loss of minerals during cooking mainly occur due to heat sensitivity, leaching into cooking water, uh, light exposure, use of stainless steel. So which one is the right option according to you? Loss of mineral बोला गया है during cooking. तो यस, द आंसर इज लीचिंग इनटू कुकिंग वाटर. तो जब आप एक कोई भी चीज बॉईल कर रहे हो तो उस वाटर में ही लीच हो जा रहा है, मतलब उसमें जो भी वेजिटेबल्स है वो उसमें से जो भी मिनरल्स लीच आउट हो रहा है, निकल जा रहा है, वो उस वाटर में ही आए. ठीक है. तो आपको क्या करना है, वो अब जब वो वाटर डिस्कट अगर आप कर दे रहे हो तो मिनरल भी डिस्कट हो जा रहा है. So basically, whenever the whatever the amount you are taking, okay, so the vitamins and minerals which are water soluble specifically, they are going to be leach out on that individual amount of water. So if you are discarding that water, na, so definitely the loss of minerals and vitamins, basically your uh, nutrients are happening through this process. Okay, so do consider whenever you are cooking, just the time and definitely the amount of heat and the amount of water is important, and do not discard the water. If you are discarding it after boiling, like the amount of boiling water, then definitely you are doing what? You are doing a ultimately the nutritional deficiency or the loss of nutrients are happening through your activity only. So just don't do that. Okay. Right. Okay. Next, which pigment in vegetables is responsible for yellow orange color? Is it anthocyanin, carotenoids, chlorophyll, or anthocyanin? So your answer is nothing but the carotenoid. Carotenes and xanthophylls give orange and yellow colors, which are relatively heat stable. Next, ABCD method A stand for definitely or anthropometric. Answer is only very easy question. Serum hemoglobin estimation used to detect anemia. Belong to which method is definitely it is a biochemical method. Okay. Peter spot seen in vitamin A deficiency is part of anthropometric assessment, clinical assessment, biochemical or dietary. So this is a clinical assessment. Okay. Next, the 24-hour dietary recall method is example of dietary method. Okay. So yes. Next, edema in protein energy malnutrition is characterized under anthropometric, biochemical, clinical, dietary. So you can see like feel clinically. So yeah, the answer will be your option C. फिजिकल साइन है, ठीक है. जब भी फिजिकल साइन होगा तो वो क्लिनिकल में आएगा. Last but not the least, the question is blood glucose testing is a part of which nutrition assessment? जब भी कोई टेस्ट हो गया ब्लड से रिलेटेड, सेरम से रिलेटेड, तब वो बायोकेमिकल में ही आएगा. तो आंसर इज योर बी. Okay, now there are some other question. Food frequency questionnaire effective measures long term dietary pattern. Okay, तब आप जब भी नेक्स्ट अगर एबीसीडी मतलब एंथ्रोपोमेट्री एंड इसका मतलब मेजरमेंट का जो लेक्चर है आपने अटेंड किया होगा, तो तब आप डेफिनेटली यू हैव सीन दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन स्पेसिफिकली. तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर, बट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप देख लेना एक बार. वेस्टिंग इन चिल्ड्रन इज बेस्ड एज यूजिंग वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट. वेस्टिंग कौन सा वाला मेंशन मतलब स्टेटमेंट सही है? वेस्टिंग जब बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा, मतलब क्या वो रिलेटेड है वेट फॉर एज से, हाइट फॉर एज से, या वेट फॉर हाइट से? तो यस, वेट फॉर हाइट से ये रिलेटेड है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए.
low weight for height is basically the term. Next, measuring serum vitamin D, definitely biochemical method. Okay, so this was the last answer and this was the last question of yours. So I think please do try to provide the feedback in our message section, like comment section. If you feel that the class is worthy or like definitely is beneficial for your upcoming examination, then do like definitely the like the video, comment us and subscribe the channel for more. Okay, so if you all are benefited with our work, then definitely we're going to come with more such kind of a video like mock test and all टॉपिक्स के ऊपर जो भी वीडियो बन रहा है वो तो हम डेफिनेटली वी विल गोइंग टू प्रोवाइड बट डेफिनेटली एंड अगर मॉक टेस्ट के ऊपर हम बोले तो रेगुलरली ही हम लोग चाह रहे हैं कि मॉक टेस्ट आए तो डेफिनेटली डू ट्राई टू सब्सक्राइब न्यूट्रिशन ज्ञान प्रभा प्लेटफॉर्म ओके इन यूट्यूब एंड वन मोर थिंग अगर आप अभी भी क्रैश कोर्स के लिए कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो एंड till now it is open for all whosoever are trying for the enrollment process and do let us know to the given number 7449488201 okay मैंने पहले भी लिखा हुआ था definitely I will be providing this to your comment section also do reach us okay for enrollment thank you and नेक्स्ट जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे ठीक है एंड डू रिवाइज व्हाटसोएवर क्वेश्चंस यू हैव लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन टॉपिक वाइज आप रिवाइज करो थैंक यू